Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. It's a simple enough process but has become embroiled in the cynical politics typical of India in recent times. It all started after the Uttarakhand High Court ordered that illegal construction which was done on railways land in Haldwani be removed. Beginning the 1st of January, eviction notices were sent to those behind around 4,300 encroachments that have come up on 78 acres of land that belongs to the Indian Railways, which means it is the property of the Government of India. Mind you, the court has made it clear that the state should evict the squatters using force if needed, after giving them 7 days notice. But despite that, the vulture politics has started. Those who thrive on pitting community against community, those who thrive in ensuring that India perpetually stays on the boil in the name of minority politics, have painted this as an attack on the Muslim community. Even as sit-ins and demonstrations on the road have been initiated now in Haldwani, political delegations are hot-footing it to the town. After all, who would want to miss being a part of this communal cauldron? Sample this. The Samajwadi Party that is sending a delegation to Haldwani tomorrow has said that a 10-member delegation will go to Haldwani on the instructions of Akhilesh Yadav because there is a plot underway to make 50,000 people of the minority community homeless in the name of encroachment. A social media handle called Hindutva Watch has declared that this BJP-ruled state plans to demolish 4,000 homes, mostly belonging to Muslims. Mostly. The action, they say, is on the pretext of removing encroachments and comes after the court heard a PIL filed by an RSS sympathizer. Some people who claim to be journalists said that Haldwani's helpless Muslim is now forced to make Muslims homeless, and yet another website says prayers and symbolic protest against the eviction of over 4,000 homes, mostly Muslims. This, of course, is mentioned in passing. Whether it be the narrative being spun on social media or by mainstream political parties, the idea is very clear. Take something which is the legal process, sanctioned, in fact ordered by the High Court, and paint it as some kind of Islamophobic, saffron Hindutva agenda sanctioned attack on India's Muslims. जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी प्रकार की राजनीतिक गुंजाइश नहीं बचती है। कहीं पर भी अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा विधि के सम्यक क्रम में अगर उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने सत्ता शासन काल में अवैध बिल्डिंगों को, अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण को हमेशा संरक्षित करते रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको संरक्षित करना अपनी वो राजनीतिक दायित्व समझते हैं और इसी राजनीतिक दायित्व के तहत उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस प्रकार से कई वर्षों से जो लगातार हमारे प्रदेश के अंदर जो जिस तरह से डेमोग्राफी को परिवर्तित करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार से हम डेमोग्राफी चेंज करने की जो लोग सोच रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। Based on religion, caste, gender, region, language, nothing of this. Why is the government picking and choosing? They need to follow and adhere the norms of the constitution. Now, don't this makes one ask, does even encroachment have a religion? If the order by the Uttarakhand High Court is explicit and clear, why are exceptions being sought? Are we to believe then that some people are going to be above the law, that they are exempt from following court orders?
And the larger question mark is also on those who are calling this an action directed at Muslims or against one community or originating with a Hindutva purpose. Are they ignorant of facts, or are they very well versed in what the reality is, but are still intent on playing a dangerous game of divide and rule, even if it means encouraging Indian citizens to turn against the courts of India? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Suresh Joshi, spokesperson of the BJP in Uttarakhand, Tushar Gupta, senior editor Swaraj, Tehseen Poonawala, political analyst, Kapish Srivastava, national spokesperson Samajwadi Party will be joining us in just a bit. But I want to start with Syed Aseem Waqar, national spokesperson of the AIM. Syed Aseem Waqar, the court has said very clearly कि 7 दिन के अंदर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए. In fact, let me quote to you more in detail from what the order is. The court says, if the occupants, encroachers fail to vacate the premises and land in dispute of the railways after being noticed, it will be open for the railway authorities that in coordination with local police and other paramilitary forces, they take forceful possession of the occupied land from such occupants, encroachers. कोर्ट ने कहा है कि अगर वो खुद से 7 दिनों में ना हटे तो जबरन उनसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से इस लैंड का कब्जा लिया जाए. इसमें सरकारी दखल क्या है? इसका मुसलमानों से, हिंदू से क्या लेना देना है? देखिए, बड़ी अंदर से खुश दिखाई दे रही है मुझे आप. मैं तो कतई खुश नहीं हूं. मुझे क्या फर्क पड़ता है? वकार साहब कब्जा करके बैठा है. सुनिए 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 सुनिए. नहीं, आप अगर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी ना. करके बैठा है. चाइना 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, उसको तो खाली नहीं करा पा रहे हैं और गरीबों के ऊपर डंडा चला रहे हैं. कमाल देखिए आप. ये आप ही के देश के लोग हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं. जितना हक पद्मजा जी का और मोदी जी का इस देश पर है, उतना ही हक उन लोगों का भी है. अपने ही देश के लोगों को बेघर करने पे तुले हैं. इस कड़कड़ाती ठंडक में कहां जाएंगे? बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बेटियां भी हैं. आप लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए थी. तो फिर सैयद असीम वकार साहब, अगर देश के हर नागरिक का देश के हर हिस्से पर कब्जा है, आप कहां रहते हैं साहब? आप कहां रहते हैं वकार साहब? मैडम, आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा. तो मैं तो मोदी जी से कह रहा हूं. आप क्यों नाराज हो रही हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूं. ये आपका जो लॉजिक है, आपका जो लॉजिक है सर, कल तो आप कहेंगे कि भाई आप अपना घर दे दीजिए, क्योंकि इस देश के हर कोने में, हर जमीन पर हर किसी का हिस्सा हक है. तो आप किसी राह चलते आदमी को कहेंगे भाई अपना घर मेरे को दे दो, या अपना घर किसी को दे दो. सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन है ना. और ये तो कोर्ट कह रहा है. लड़ाई मेरी, इसमें मोदी जी का और सरकार का तो कुछ लेना देना नहीं है. सुनिए, ये लड़ाई सुनिए मैडम, ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है. बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनको सरकारों ने 1-1, 2-2 रुपए की लीज पे जमीन दे दी. आप कोर्ट पे जाइए उसके खिलाफ. फूड पार्क के नाम पर एकड़ों, कोर्ट में जाइए. फूड पार्क के नाम पर एकड़ों जमीन सरकार ने दे दी. कोर्ट में जाइए. 100 रुपए पे बेदखल कीजिए. 100 रुपए किराए पर. कोर्ट में जाइए सर. यहाँ कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने कहा. अरे मैडम, आप लड़ क्यों रही हैं मुझसे? क्योंकि सर आप मुझसे लड़ क्यों रही हैं? आप जो बातें कर रहे हैं वो किस बिना पर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी न्यूज चैनल को सरकार ने जमीन दी है लीज पर. मैं कह रही हूं आप कोर्ट में जाइए. कल को कोर्ट कहेगा कि आप 7 दिन का नोटिस दे करके इनको बेदखल कीजिए. बेदखल होना चाहिए. अब बताइए, यहां कोर्ट कह रहा है, यहां तो सरकार ने दिया ही नहीं है ना. तो दीजिए. कोर्ट बोल रहा है. मुझे लग रहा है सरकार से ज्यादा जल्दी तो आपको है खाली कराने की. सर, मेरे को जल्दी है कि आप मुझे न्याय का पालन होना चाहिए. मुझे बात तो रखने दीजिए. बोलिए.
नहीं, आप किसी न्याय के पालन की बात नहीं कर रही हैं। आपके चैनल पर तो नवभारत टाइम्स में देख रहा था, वो जमीन जिहाद चल रहा था। सर आप अभी की बात कीजिए ना। ये जमीन जिहाद क्या होता है मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं नहीं बोल रही हूं ना। खाली मुसलमान कब्जा किए देश में। सर मैं अपनी बात करूंगी। खाली रेलवे लाइन की नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट। रेलवे लाइन के किनारे सिर्फ मुसलमान कब्जा किए हैं। आप मुझसे तीसरे का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझको बताइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे कोर्ट के ऑर्डर की बात किनारे। मैडम मुझे बात तो करने दीजिए पूरी। चलिए कीजिए। देखिए मुझसे आप जीत नहीं पाइएगा, समझिए पूरी बात आप। सर ये मुझसे बिल्कुल नहीं जीत पाइएगा, क्योंकि मैं सच पर और हक पे हूं। हार और जीत और जो आदमी ईमानदार होता है, मैं भी जो सच पे होता है, उससे कोई जीत नहीं सकता। कोर्ट के ऑर्डर। इंदिरा हृदय जी के बेटे कांग्रेसी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार कई साल रही। उसके पहले वो भगोड़ा जी भी मुख्यमंत्री थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सलमान खुर्शीद साहब आज फाइल उठाकर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सुमित हृदय साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलाने के लिए। तकलीफ है बहुत। 2004 से 2014 के बीच में अगर माननीय मंत्री जनाब सलमान खुर्शीद साहब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पास चले गए होते, रेलवे मंत्रालय के पास चले गए होते कि ये गरीब लोग हैं, इनको विस्थापित कर दीजिए, इनको कहीं और जगह दे दीजिए, घर दे दीजिए। हरीश रावत साहब आप मुख्यमंत्री हैं, कहीं घर दे दीजिए, तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ता। ये जो फर्जी का दिखावा दर्द है ना, ये उन बच्चों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए जिनको जाड़े में, कड़कड़ाते जाड़े में बेघर किया जा रहा है। चलिए आप बेशक अपनी लड़ाई लड़िए, आज आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है जाइए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे असीम वकार साहब 10 साल तक कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी की सरकार मुसलमानों पे अत्याचार का क्या लेना देना है? क्या है सरोकार बीजेपी की सरकार का और क्या लेना देना है मुस्लिम पे अत्याचार का? मैडम मैं बता रहा हूं आपसे, मैं मोदी जी से गुजारिश कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। जिसने उनको वोट दिया वो उसके ही प्रधानमंत्री हैं, और जिसने उनको वोट नहीं दिया वो उसके ही प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको तकलीफ नहीं होती है? छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर आदमी कहां जाएगा इतने जाड़े में? अच्छा, आप विस्थापित, हजारों लोगों को विस्थापित, लाखों लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। जगहें दी जा चुकी हैं, उनको क्यों नहीं दी जा रही हैं? और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों किलोमीटर की रेल लाइन है, जमीनें रेलवे के पास है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे कब्जे हैं। बहुत आपने अच्छी बात कही, इसीलिए अब मैं आपको उसका काउंटर देती हूं। शोरूम खोले हैं, हाँ, बड़ी बड़ी उसका काउंटर देती हूं सर। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेलवे लाइन है, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चली हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोर्ट में केसेस चले हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोर्ट के आदेश आए हैं। जैसे कि सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ क्लोज टू 48,000 स्लम ड्वेलिंग्स सिचुएटेड अलोंग द रेलवे ट्रैक्स। 48,000 एनक्रोचमेंट जो है रेलवे ट्रैक्स पर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 2020 में। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने के अंदर आप इनको हटाइए। और ना सिर्फ ये कहा, उन्होंने ये भी कहा दैट नो अदर कोर्ट कैन स्टे द रिमूवल ऑफ दीज एनक्रोचमेंट्स। हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 48,000 slum dwellings on the railway tracks have to be removed because they are illegal encroachments. Point number 1. Point number 2. In December 2021, the Supreme Court passed an order in favor of a Western Railway ordering demolition of 2,546 huts between Udhna and Surat railway stations to facilitate the laying of a third railway line to help ease congestion at Surat railway station. After that, in January 2022, demolition was carried out. 2,500 illegal construction गुजरात में रेलवे लैंड से हटाई गई सर। पर यह इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर इस तरीके की जबरदस्ती की हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की गई। यह मतलब नहीं है कि वहां पर एनक्रोचमेंट है तो आप उसको लीगलाइज कर दें। कोर्ट के ऑर्डर पर हटाए गए हैं और कोर्ट के ऑर्डर पर हटाए जाने चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। पर तुषार गुप्ता दी आर्ग्यूमेंट नाउ इज कि जब सबके सर
पर छत का वादा किया है सरकार ने, देन इधर छोटे छोटे बच्चों को बेघर क्यों किया जा रहा है इस ठंड में? आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। एक सेकंड सर, आपका ही सवाल पूछ रही हूं कि छोटे छोटे बच्चों को मोदी जी बेघर क्यों कर रहे हैं? व्हाई इज ही मेकिंग देम होमलेस? तुषार गुप्ता, एक लाइन और बोलना चाह रहा था। एक सेकंड सर, आप 10 लाइन बोलिएगा, तुषार गुप्ता का जवाब सुन लीजिए। तुषार गुप्ता, पद्मजा, बातों बातों में वकार जी ने एक चीज अच्छी कह दी कि वहां सिर्फ मुसलमान थोड़ी हैं, वहां हिंदू भी हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का तो एजेंडा है ही नहीं। सबसे अच्छी बात तो वकार जी ने खुद कह दी। तो जो समाजवादी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, किसी और पार्टी के प्रवक्ता है, जिनको ये इस्लामोफोबिक लग रहा है पूरा एक इंक्रोचमेंट ड्राइव, वो तो गलत साबित हो गए हैं। दूसरी चीज पद्मजा, आज सर्दी का मौसम है, कल गर्मी होगी, बरसात होगी, फिर सर्दी आएगी। अब मौसम तो चलते रहेंगे। नहीं, एक मिनट बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। अब मौसम तो चलते रहेंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। अब इंक्रोचमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों का एज ग्रुप देखने लगे। I mean, Padmaja, what people want in this country is the Shaheenberg syndrome to continue. That if their elderlies or children or women encroaching upon illegal land or illegally encroaching upon land, they should be allowed to do so. Look, at the end of the day, it's the country of the Prime Minister, it's your country, it's Vakarji's country, it's the country of all those citizens who are currently occupying that land illegally. But this is the law. It's not from the government, it's from the High Court. You cannot confuse it for the government's order. This is from the High Court of Uttarakhand. They want the land to be taken, to be cleared. तो इस्लामोफोबिया किधर से आया? No, Padmaja, this started from Delhi, you know. When they were demolished, they were demolition drives which were happening in Delhi, and suddenly people were interested. अरे जहांगीरपुरी में तो ये समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर तो ये समुदाय के लोग हैं. My problem is, when did the implementation of law in this country start depending on the people against who the law was being implemented? When did it become so selective? क्या रिलीजन डिसाइड करेगा कि लॉ अप्लाई करती है कि नहीं करती है? सैयद असीम वकार, और इसमें आपको इस्लामोफोबिया दिख रहा है? देखिए, जिस जहां की बात हो रही है हल्द्वानी में, गफूर बस्ती की बात हो रही है। उस गफूर बस्ती में बहुत सी जमीनें जो मेरी जानकारी में है ऐसी हैं कि जिनका रजिस्ट्री भी हुई है, जिनको बेचा खरीदा भी गया है, और सरकार ने जो उसकी फीस है, रजिस्ट्री फीस है, जो उसका स्टाम्प ड्यूटी वो ली है उत्तराखंड की सरकार ने। मैं पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार की रेलवे की जमीन क्या उत्तराखंड की सरकार और उसके अधिकारी बेच सकते हैं किसी को? वहां लोग दिखा रहे हैं पेपर। आपने बहुत अच्छी बात कही। इस पे भी उत्तराखंड की सरकार, ऑर्डर आया है। रेलवे की जमीन, आपने बहुत अच्छी बात कही, इस पे ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? The railway administration is further directed to initiate an appropriate proceeding. Hold on, sir, hold on. Appropriate proceeding against the erring persons, including the officials of concerned establishments, for not cooperating in the process of eviction, and they would also be taken to task for establishment or allowing the encroachers by occupying the land belonging to the railways. यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की मिली भगत से ये लोग पहले आकर के यहाँ इलीगली बसे हैं, उनके खिलाफ भी रेलवेज केस करे और उनको भी एक्शन लिया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने करप्शन करके वहां पर इलीगली बसाया है तो वो कंटिन्यू करा जाए। इसमें इस्लामोफोबिया क्या है, पहले आप ये बताइए। इस्लामोफोबिया कहां है? पहले ये बात क्लियर हो जाए कि इस्लामोफोबिया है कि नहीं है। पहले बात समझिए। नहीं, पहले बात समझिए मेरी। जब आप उत्तराखंड सरकार, उसके अधिकारी, उसका राजस्व विभाग जब रजिस्ट्री कर रहा है, फीस ले रहा है, कोर्ट फीस ले रहा है, रजिस्ट्री फीस ले रहा है, स्टाम्प ड्यूटी ले रहा है, तो जिन अधिकारियों ने और जिस विभाग ने किया है, उनके मकान छीनकर उनको दीजिए जिनकी रजिस्ट्री की गई है। अरे सर, उनके खिलाफ केस होगा, मकान क्यों छीना जाएगा? उनको जेल में डाला जाएगा, जैसे कि कोर्ट ने बोला है। पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ये हम थोड़ी टीवी पर डिसाइड करेंगे। ये तो कोर्ट ने बोला है, उन पे केस कीजिए, एक्शन लीजिए, वो तो होगा। अब आप ये बताइए कि इस्लामोफोबिया कहां से आया सर? इस्लामोफोबिया नहीं है ना, या है? नहीं मैडम, 95% उस जगह पर मुसलमान ही रह रहे हैं, तो वो इस्लामोफोबिया हो गया। मैं ये नहीं कह रहा 100%, क्योंकि 5% हिंदूज डोंट मैटर हैं, तो 9 मंदिर टूट रहे हैं, पर फिर भी इस्लामोफोबिया है। नहीं, अगर इस्लामोफोबिया नहीं है
तो आपके चैनल पे ये जमीन जिहाद क्यों चल रहा था? अरे मेरे चैनल पे नहीं चल रहा, मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ। आप दूसरे चैनल का नाम लेकर के मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अरे मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, इस्लामोफोबिया कहाँ से आया? आपका जो हिंदी चैनल है उस पर चल रहा था। अरे सर, आप मुद्दे की बात करो ना, मैं अपने शो की, अपने चैनल की अपनी बात करूंगी। जमीन जिहाद, आप इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं, कैसे हुआ इस्लामोफोबिया? जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर 14 मस्जिद / दरगाह और 9 मंदिर मार्कआउट किए गए हैं कि इनको हटाया जाए। अब हम तो नहीं देख रहे कि कोई पुजारी वहां बैठ करके कह रहा है कि भाई इसको तोड़ो मत, मैं यहां पर कैंडल लेकर के बैठा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है, उसको हटाया जाना चाहिए। बहरहाल, इस्लामोफोबिया आपने बोल दिया है। अब मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूँ, आपसे थोड़ा सोचिए कि इस्लामोफोबिया कैसे हुआ, इस्लामोफोबिया कैसे हुआ, आप थोड़ा सोचिए। तब तक मैं पूछना चाहती हूँ कपिश श्रीवास्तव जी से। कपिश श्रीवास्तव जी, आज आपका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें लिखा हुआ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 4 जनवरी 2023 को हल्द्वानी जनपद जाएगा। हल्द्वानी में रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर 5000 अल्पसंख्यक परिवारों के घरों का ध्वस्तीकरण करके 50,000 लोगों को बेघर करने की साजिश की जा रही है। ये 5000 परिवार अल्पसंख्यक है, या आपको कैसे पता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि 5000 नहीं है, ये आप। हाँ जी, मुझे आप पहले इसका जवाब दे। 5000 वहां, क्योंकि हमारा रिपोर्टर है वहां पे, हमारा रिपोर्टर है वहां पे, और उनको पता है कि ये 5000 परिवार जो है वो मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। हमारे भी अपने जमीनी कार्यकर्ता है। देखिए, ये तो बात ही फिजूल। अब मैं दूसरी बात करूं, कुछ लीगल बातें हो जाए। आपने पूरी पॉपुलेशन को वहां पे अल्पसंख्यक बता दिया, क्योंकि आपको ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बात तो तय है, क्योंकि 9 मंदिर वहां पर टूट रहे हैं, तो अल्पसंख्यक मंदिर तो बनाएंगे नहीं सर। अरे भाई सुन तो ले, कुछ लीगल डिस्कशन, ये बात तथ्य है। अच्छा पद्मजा, क्या कुछ लीगल डिस्कशन नहीं करना चाहेंगी? अभी नहीं, तो आप बड़ी नज़ीरें पढ़ रही थी। डिस्कशन होना चाहिए। अगर लीगल डिस्कशन होता मैं तो इसीलिए कह रहा हूं तो ये पॉलिटिक्स ही नहीं होती ना, क्योंकि लीगल तो ये मामला एकदम क्लियर है आप तो इतनी कि ये इलीगल एंक्रोचमेंट है। बैठिए, कपिश श्रीवास्तव भी एक एडवोकेट है, हमारी भी बात सुन ले। मैं एक बात कह, अभी तो आपने कहा इस्लामोफोबिया, वो भी उसका भी जवाब मैं दूंगा, लेकिन अटैच करूंगा कहीं, आप समझें। देखिए, पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इस देश की अंतिम न्यायालय नहीं है, अपीलीय न्यायालय है। और अगर वहां अल्पसंख्यक आबादी नहीं ज्यादा होती और बहुसंख्यक आबादी ज्यादा होती, तो शायद यही सरकार अपील कर रही हुई, क्योंकि अपील का अधिकार तो है ना, सरकार भी जा सकती है, लोग भी जा सकते हैं। और मैं एक चीज कह रहा हूं, हाई कोर्ट के अंदर, ये बात सच नहीं है सर। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब दिल्ली में और गुजरात में, वो उदाहरण नजीर नहीं बैठती है। क्यों? जो आप उदाहरण गुजरात में जिनके घर तोड़े गए, वो गुजरात सरकार ने तोड़े, तो वो क्या फोबिया था? हर तथ्य सुन तो ले पद्मजा, हम लोग डेली इसको डिस्कशन करते हैं ना कोर्ट में। कोर्ट की अपनी भी व्यू होती है और हम लोग की भी अपनी व्यू होती है। मैं एक बात कह रहा हूं, एक ही वाद के कई अलग अलग तथ्य सामने आते हैं और कई वाद अलग अलग होते हैं। नजीरें कंप्लीट उस पर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, तो ये हायर कोर्ट तय करेगी। अब मैं दूसरी तो सर कोर्ट में जाइए ना, ये आप अपना डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। तो ये बताइए कि कोर्ट में जाने के बजाय आप ये कह के कि 5000 अल्पसंख्यक परिवार वहां विस्थापित हो रहे हैं, अपना डेलीगेशन भेज के राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सच में कोर्ट का ही विश्वास है, आप तो एडवोकेट हैं, आप कोर्ट की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप वकील ना बन करके, आप वकील है ना, इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय आप राजनीतिक दल क्यों भेज रहे हैं? भूमिका में होना चाहिए। सुने, वकील की नहीं, आपने प्रश्न किया मिलॉर्ड, अब आप मुझे सुन लें थोड़ा, बताएं। हम भी आपके ही इसी देश के नागरिक हैं, वो लोग भी इसी देश के नागरिक। और मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की होती तो यही सरकार अपील कर रही होती। और मैं तीसरी बात आपको कह दूं, गोरखपुर के अंदर
एक पिपली वन पहले का था जो कुसमी जंगल के नाम से जाना जाता, वहां इंक्रोचमेंट था वनटांगियों का। योगी आदित्यनाथ जी ने बकायदा घर बना करके उनको स्थापित किया है। किस लैंड पे ऑर्डर था? किस लैंड वहां पे भी था? ऑर्डर था। किस लैंड पे था? किसके लैंड पे था? रेलवे जंगल लैंड पे की था? जमीन सरकार की, सरकार की। जंगल सरकार का होता है, जंगल किसी व्यक्ति का नहीं होता। बताइए सुरेश हमेशा जोशी, सरकार की संपदा होती है। अगर ये मेजोरिटी कम्युनिटी होती तो आप उनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देते और अपील करते सुप्रीम कोर्ट पे कह रहा हूं। यहाँ क्यों नहीं कर रहे? वैसे सर आपने बोला कि पूछना चाहता हूं कि ये 30, 35, 40 साल पुराने मसले हैं। जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो तब इनको जो है कि रामपुर तिराहे पे लोगों को गोलियां चलाने से, खटीमा मंसूरी के कांड करने से फुर्सत नहीं थी। अगर उस समय जो है कि इन सारे प्रकरणों को समाजवादी पार्टी के लोगों ने सुलझा लिया होता तो 2007 में लोगों को न्यायालय में नहीं जाना पड़ता। इसलिए सबसे पहले तो जो आज ये कह रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकार के अंदर थे तो उस मसले को आपके मुख्यमंत्रियों ने सुलझा लिया होता उत्तर प्रदेश के टाइम पर। ये मामला उत्तराखंड का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के टाइम का मसला है। इसलिए जब मसला आपने नहीं सुलझाया, लोगों ने जमीनों पर, वहां पर को जो जमीनों पर लोग बैठे थे उनके मसले नहीं सुलझे, तो आज वो लोग 2007 में न्यायालय में गए। ये विद्वान अपने वकील साहब आपसे चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ये क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर जो आज ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, या अखिलेश भाई जो आज चिट्ठी पत्र भेज करके 5000 लोगों की बात कर रहे हैं, तब इनके पास तब इनके पास क्या विद्वान, इनके पास क्या विद्वान उस समय कोई ऐसे लोग नहीं थे क्या जो न्यायालय में इलाहाबाद में जाते या नैनीताल में जाते या सुप्रीम कोर्ट में जाते? इसलिए ये जो उन्माद फैलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में इनको उन्माद नहीं फैलाने दिया जाएगा। उन्माद फैलाने की कोशिश कपिल श्रीवास्तव, उन्माद फैलाने की कोशिश आप इसको माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मुद्दा बना रहे हैं, ये जानते हुए कि वहां पर बहुसंख्यक भी रहते हैं। इस सरकार की, देखिए सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार दोषी है, न्याय देने की नीयत है। सरकार दोषी है तो कोई केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही प्रहार क्यों हो? के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। मैं तो ये सीधी बात पूछ रहा हूं। और उच्च न्यायालय का फैसला आखिरी नहीं है, उत्तराखंड के अंदर आकर अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर भी ये किसी भी संवैधानिक पीठ बची हुई है। समाजवादी पार्टी वो तय करेगी अंतिम चीजों को। सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसलिए मैं तो यही पूछ रहा हूं। सरकार को ओके लेट मी नाउ एड्रेस दिस थिंग। एक सेकंड कपीश जी, आप भी जानते हैं क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, इसीलिए आप या तो लोगों को भटका रहे हैं या शायद आपको बताया नहीं किसी ने कि ये कोई जल्दबाजी नहीं है। ये केस 15 साल से चल रहा है एंड 15 साल से ये ना सिर्फ चल रहा है बट इन फैक्ट द कोर्ट हैज कॉल्ड आउट तहसीन पूनावाला द मैनर इन विच दिस केस हैज बीन हैंडल्ड. So what has the High Court said about why this case dragged on for so long? And this is important for everyone to hear. The High Court says, owing to a certain most reckoned political shield which was then being provided by the then ruling party for its political gains to unauthorized occupants to secure its vote bank, the state filed a review petition for no subsisting and valid reasons, seeking review of the judgment dated 9th November 2016, which was dismissed by the division bench. So the High Court is saying that ये encroachment बहुत पहले हट जाना चाहिए था, but the government, which was Harish Rawat's government, because of political vote bank, decided to file a review petition. This encroachment has carried on because of vote bank politics. So I bow down before the Honorable High Court, but I disagree with it. So 3 or 4 points. I'm also helping these poor victims who are fellow Indian citizens in the Honorable Supreme Court. Salman Bhai is fighting their case and justice will be given. Let's just ask ourselves, a government is neutral, forget Harish Rawat or the current Pushkar Singh Dhami ji's government. The government is the government of the state. On affidavit in the High Court, in the present case, in the present arguments, the government has stuck to the affidavit of 2016. It's not sought any changes in the affidavit. So then, why isn't the government
appealing this order against itself if it stuck to the affidavit. If the affidavit of Harish Because Rawat was wrong, the government should have the changed past the affidavit. appeal has already been called out as vote bank politics. Did I not Fair just point. read out to you? Yes, Right however, now the Uttarakhand High Court has said that this land does not belong to people who are squatting on it. The government in 2017 has already sought review because of vote bank politics to secure its vote bank. Now you're saying that again the government should go and appeal. Why? I'll explain to you why. I'll explain to you why the Uttarakhand High Court made those judgments, again bowing before the Uttarakhand High Court. The municipal corporation did not submit its papers before the court in totality. Now, anywhere across India, and I'll come to your Surat example in specific. I am aware of the Surat case because it's something that's been put up time and again, not just Surat case, many other cases. In none of these cases is it 400, 500 feet away from the railway station. They are all within the vicinity of 45 feet. This is the first case in the country where 500 feet away from the railway station. Can you imagine? And I can see Tushar on the screen. Legal, illegal, 500 feet away from Delhi railway station. What is going to be taken away by the railway? Yes, here is the reason why. It is not 500 No, because it is important to know the reason for this. Here is what the court has said about private need of these squatters versus public need. Now people are asking, why are these people not being allowed? If the people are allowed to continue on this land, they will pose a threat to the population in general. How? How? Looking to the geographical constraints of the Haldwani railway station, since it adjoins the riverbed of the Gola River, the engineering layout has to be planned in a fashion in order to meet any future untoward contingency, which may be caused due to flood or any geographical calamities that cannot be perceived at a given moment of time, but there could only be preparedness, and that preparedness in the present case will require an availability of a land for the future. But may I ask you, No, hold on Padmaja? a second. I've read that part. May I ask you a question again? I am giving you counter back. question Hold you. on. All right, Which but is allow why, me to in counter such question an you on that. eventuality or otherwise, to meet the need of the growing township of Haldwani, where there is a regular and ever going on population explosion, we are of the view that since by the documents which have been placed on record before us and which have been analyzed, no private need have precedence over and above a public need, and that too on a property which has been vested with the railways as per the Khewat pertaining to 1959. So your private need of an encroacher cannot supersede the public need of the safety of people of Haldwani. And that is exactly what we are appealing against. Because can you, Padmaja, and you research extremely well and you have a lot of respect for you, or anyone else on this panel, show me another case in India where 500 feet away railway has a public need for public news. 500 feet. Surat was 45 feet. Show me 500 feet anywhere. So tomorrow you take 500 feet across. It is mind-boggling. It is mind-boggling the goalpost that we have jumped to over here, from saying that the targeting is happening because of the community, to saying that the targeting is happening because the BJP is in power, to now saying कि भाई 500 feet से आपने 1500 feet क्यों कर दिया? Whether it is 500 feet or it is 15,000 feet, it is government land. It does not belong to you. Get off it. Not railway You land. can't sit on government land. State government land. You State cannot sit government on government land. It is state government land. But can I make one last point? Are you medium, supporting just one Tehseen last point. Poonawalla that tomorrow I pitch a tent on Central Vista and say it is very, very cold outside? I will sit here now. Because, well, it's cold. Your argument? Is it your argument? Sit on Central Vista. Can I? It is government land. It belongs to me. I'm a taxpayer. I want to sit on Central Vista with my tent. I understood your question. Is it your argument on the same Central Vista example that tomorrow if the Delhi railway station wants to expand not 500 meters but 5,000 meters, you will remove the Honorable Prime Minister's house because public need is greater than some other need? Please, these are fictitious arguments. But actually, yes, if the court says so, yes. The answer to that is very simple. If the court deems it fit for public need, the answer is yes. And it has been yes in many, many cases. But let Tushar Gupta answer. Look,
Look, you understand that the court is also pointing out to a prospective geographical calamity which impacts the engineering layout of the area. It's not about 500 or 15,000 feet, Tehsil. Tomorrow, if I start camping in your house, citing that I have elderlies with me or children with me, but I illegally start encroaching upon your property, and I say, oh, Tehsil lives in the city, why does he need his land in the village? I can encroach upon it. It doesn't make it right. It doesn't make it right. The necessity of that land for a particular institute of the government, be it the railways or be it the state government, doesn't decide if the encroachment is illegal or legal. The court decides that, and the court has decided. Now, if you are right, if you think that the 500 feet argument has any rationale to it, raise it up with the Supreme Court. The Supreme Court would be happy to hear it. That, okay, if it's 500 feet away, maybe the railways doesn't need it, maybe the state government doesn't need it, but it still remains an illegal encroachment at the end of the day. And more importantly, while you may argue the legal point, nobody has still explained where did this entire minorities under attack narrative came from. This is the most disingenuous spin ever. Nobody has given any evidence for it. Nobody has given any logic for it. But here we are. Because I'll answer the minorities part. Because in a case where it's the Shaheen Bagh syndrome. It is, and it must continue. These people have a right, and if need be, they must come and protest in Delhi. It is their legal constitutional right. This is not railway land. What this is state government land. What legal constitutional right allows you to sit on government land? What part of the constitution says that you can encroach government land? What part of the constitution exactly? I'll explain to you. And what part of the constitution says that the state government will not claim its own land and but give it away to the... You are not answering my question. You said it's their legal constitutional right. Name me what part of the constitution allows you to squat on government land. Where does the constitution say that you can sit anywhere on government land? It is state government land, and state government doesn't say there's squatters. Railway says it's a third party that's saying there's squatters. Where does the constitution say that you can squat on state government land? The constitution gives you a right to life and liberty under Article 21, a right to equality under Article 14, a right but to it equally applies to the people, to the other citizens whose right to equality you are encroaching upon. Not railway land. That is government land. It belongs to the government. It belongs to the taxpayer. It does not belong to you. Just answer one question and I'll end. Just answer one question. Or Tushar can answer. Why did the corporation not put their documents before the Honorable Court? Why did the corporation not come? Ask Tushar or ask the BJP leader. Okay, why Mr. Joshi. Are you? Mr. Joshi, the charge is that you haven't represented the case. देखिए पद्मजा जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था पूनावाला जी को। बेसिक क्या है कि आज अगर जो हम हल्द्वानी के जिस केस के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, न्यायालय का जो फैसला है वो तो अब आया है, लेकिन उससे पहले 2007 में ये केस जो है कि न्यायालय में गया है, और ये विद इन जो है कि 40 एंड 45 ईयर ओल्ड केसेज हैं ये। तो उन 40 और 45 सालों के अंदर जो पूनावाला जी, तो मुझे लगता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही जो है कि देश और प्रदेश के अंदर शासन था, और ये लोग एक बार नहीं, आज ये गवर्नमेंट लैंड की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है उनको रखना। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपकी उत्तर प्रदेश देश के अंदर दोनों जगह पर सरकार थी, चाहे वो लैंड फॉरेस्ट की थी, चाहे वो लैंड रेवेन्यू की थी, चाहे वो लैंड रेलवे की थी, क्यों नहीं इनकी सरकारों ने 2007 तक उस लैंड को जो है कि उन लोगों को उनके नाम पे क्यों नहीं कर दिया? अगर राइट्स उनके बनते थे और गवर्नमेंट की पावर्स थी। नहीं, एक मिनट पद्मा जी प्लीज। दूसरी बात यह है कि 2007 में जब वो कोर्ट पे गए, उससे पहले भी जो फर्स्ट गवर्नमेंट उत्तराखंड बनने के बाद बनी, वो कांग्रेस की बनी। ये लोग एनडी तिवारी और हरीश रावत जैसे बड़े नेताओं के पास बार बार जा रहे थे, लेकिन इनकी गवर्नमेंट होने के बाद भी, इनकी गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट पे इन्होंने केस को पुट आउट न करके इन्होंने कोर्ट भेजा। अब जब कोर्ट का फैसला आता है तो कोर्ट के फैसले के बाद कहां गवर्नमेंट रह जाती है? Okay, at the end of the day, the issue is very simple. Anyone who has a problem with what the High Court has said, please go to the Supreme Court, and eventually if the Supreme Court decides to stay this judgment or decides to stay this decision, that must also be followed. But to jump in the middle and try and spin it to your own convenience to suit what you want to project about the country is not okay. And people are beginning to see through this. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. 5th of January is when the hearings in the Supreme Court will keep a close track.